one question. So I believe you people enjoyed that question. Try to solve it. Please read the code completely. It is still we have at the end finally and print inside finally print success. And try to give as much maximum response you can. लास्ट 10 सेकंड सर, अभी तक हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, Okay. तो we can give them another 30 seconds maybe. Yeah, we will give them 60 seconds so that they can solve it. Are we getting any response? Students, kindly participate in this quiz. So no response. One response which says B is the answer. Okay. So I believe I have to explain this one, na? Since very few output we are getting. So I'm going to explain you. The right answer is A. Now I'm going to explain you why it is A. Inside the try we have check status function that call is underscore div underscore by 2 malab is divisible by 2 we can say, and it passes one list, and list having elements 2, 13, 22, and 3. So these elements are copied into this list 1. Then inside this function we have one try block where we write for value in list 1. So you know that for loop is running, it picking one by one each element of this list 1. So first it picks 2, value remainder 2 is not equals to 0. So you know that 2 remainder 2 is 0. So condition is true. So it will move to print divisible because this is not an error. So print divisible by 2. So it will print divisible by 2 first. Then because there is no exception, so this exception is not occur in the first case, it will raise non-divisibility exception print divisible by 2. Again we get a 13. 13 is divisible by 2, remainder is not equal to 0, so it will move to except non-divisibility exception. Inside this we have write number exception inside. So at the second for the 13 it will print number exception inside. Okay. Then again uh, when this code is completely running, you know that at the end of the code we move to final block. At the final block we have two element, one is two statements, one write inside finally and second is success. So first is 0 by 2, second is number exception inside, and third one is inside finally, and fourth is success. So these 4 points they print as an output. I believe it is clear to you.
since it is a morning, there is no pressure, and you people are not try to do dry run. That's why you are not getting the answer. If you dry run it once, you will definitely get the answer. So try to dry run it, please. I know that मॉर्निंग में ही आपको कोई पर्सन प्रॉब्लम दे देता है, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार मॉर्निंग में ही इन्होंने प्रॉब्लम दे दिया. मैं समझता हूँ आपकी बात, but this is for your good future, not for my. So please try to dry run at least dry run once. I believe it is clear to you. सर मेजॉरिटी रिस्पॉन्स आ रहा है कि क्लियर नहीं हुआ, प्लीज रिपीट कर दीजिए. सम अंडरस्टैंडिंग आप. Okay. And they're asking कि क्या होगा अगर 22 and 3 पास होता है तो. Again 22 पे वही जो वैल्यू जो शुरुआत पे रिपीट हुई थी, 22 is divisible by 2, so it shows divided by 2, and when 3 is passed it show number exception. अगर 22 जाएगा तो ऐसे आएगा ना फिर आंसर आपके पास, divisible by 2 number of exception inside, divisible by 2 number of exception inside, then it comes outside, then finally it prints inside finally and success. So हम लोगों ने वो दो टर्म्स, क्योंकि आप जब आंसर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर ही आपका आउटपुट होता है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है वही आपका आंसर होता है. अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस नजर आते हैं तो 2 और 13 पे वही आउटकम मिलेगा जो हमें 22 और 3 पे मिल रहा है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग दैट आउटकम. वी जस्ट फोकस ऑन हाउ इट बिहेव्स ऑन दीज नंबर्स. So once you dry run it, you will definitely get the answer. सर अभी भी रिक्वेस्ट आ रहा है रिपीट करने का, अभी भी रिपीट कर. ओके, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, चेक स्टेटस एक फंक्शन है जिसके अंदर आप कॉल कर रहे हैं, सॉरी, चेक स्टेटस एक फंक्शन है जिसके अंदर आप कॉल कर रहे हैं इज डिविजिबल बाय 2 फंक्शन को, और जिस फंक्शन के अंदर आप एक पूरा लिस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं. तो दिस इज कंप्लीट लिस्ट जो कि यहां से यहां पर ट्रांसफर हुआ. ठीक है, लिस्ट 1 में. फिर वहां पे एक ट्राई ब्लॉक है, वहां पे लिखा हुआ है फॉर वैल्यू इन लिस्ट 1. तो लिस्ट फॉर लूप जब रन करता है तो वो एक एक वैल्यू को पिक करता है और चेक करता है ना. तो हमने क्या करा, वैल्यू रिमाइंडर 2 देखा, तो 2 को रिमाइंडर 2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, है ना. अब नॉट इक्वल टू 0 होगा तब एरर रेज होना है ना. इट इज इक्वल, सॉरी, इट इज इक्वल टू 0, तो ये कहां पे आ जाएगा, प्रिंट डिविजिबल बाय 2 को प्रिंट कर देगा. फिर आप 13 पे जाएंगे, 13 रिमाइंडर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, देन इट रेजेस नॉन डिविजिबिलिटी एक्सेप्शन. व्हेन इट रेजेस नॉन डिविजिबिलिटी एक्सेप्शन, इंटरप्रेटर सर्च करेगा नॉन डिविजिबिलिटी एक्सेप्शन को, तो इंटरप्रेटर को इसी ट्राई के अंदर एक एक्सेप्ट मिल जाएगा जिसपे नॉन डिविजिबिलिटी लिखा हुआ है, और जिसका आउटकम क्या है, नंबर एक्सेप्शन इनसाइड. तो प्रिंट क्या कर देगा, नंबर एक्सेप्शन इनसाइड. फिर 22 पिक करेगा, 22 का रिमाइंडर निकाला 2 से, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि एरर रेज नहीं करेगा. कहां पे आ जाएगा, फिर प्रिंट पे आ जाएगा, प्रिंट डिविजिबल बाय 2 लिखेगा. ठीक है, फिर वापस गया 3, एक और एलिमेंट पिक करा 3, 3 रिमाइंडर 2, 3 रिमाइंडर 2 इज क्या होता है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट विल रेज अगेन एरर, नॉन डिविजिबिलिटी एक्सेप्शन एरर. अब फिर इंटरप्रेटर सर्च करेगा नॉन डिविजिबिलिटी कहाँ है, तो सबसे पहले कहां पे मिल गया उसको, इनसाइड दिस ट्राई ब्लॉक, तो उसको अगेन प्रिंट कर देगा नंबर एक्सेप्शन इनसाइड. फिर जब ये लूप रन हो गया और एक एक एलिमेंट हमारे रन हो गए, तो आपको पता हम इस ट्राई से बाहर आएंगे जहां से कॉलिंग किया होगा, और वहां पे 2 एक्सेप्ट लिखे हुए हैं, दोनों एक्सेप्ट रन हो चुके हमारे ऑलरेडी, जो ऊपर ट्राई में ही वो कंज्यूम कर चुका था. तो फाइनली रन होगा, फाइनली में क्या लिखा है, इनसाइड फाइनली एंड सक्सेस, फिर ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे. आप कोई डाउट इसके अंदर तो बताएं. हाँ, स्टूडेंट कोई डाउट हो तो प्लीज लिख दें चैट में. अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा दोबारा ट्राई करता हूँ. सर एक क्वेश्चन है कि जो इवेंट प्रिंट 2 वाला स्टेटमेंट है डिविजिबल बाय 2, वो एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं है क्या? डिविजिबल बाय 2 किसके अंदर नहीं है, सॉरी? फॉर लूप के अंदर इफ हमने वैल्यू मॉड 2 किया, देन रेस किया, राइट, जो रेस के नीचे हमने प्रिंट डिविजिबल बाय 2 लिखा है, क्या वो इफ स्टेटमेंट के अंदर है, बाहर है, कहां पर है एग्जैक्टली? Actually, there is some indentation issues are there, but value remainder 2 is not equal to 0.
हमारा एरर रेज नहीं करेगा, तो थोड़ा सा उसमें इंडेंटेशन इश्यूज है। आई आई नो दैट सम इंडेंटेशन इश्यूज आर देयर, तो इसलिए शायद कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये डिविजिबल बाय 2 पे चला जाएगा। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है कि अगर हमने वैल्यू की वैल्यू इक्वल टू 2 रखा तो इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करेगा? वैल्यू क्या रखा? 2। 2 रिमाइंडर 2 क्या होता है, आप बताएं, स्टूडेंट से पूछें व्हाट इज द 2 रिमाइंडर 2, आउटकम ऑफ द 2 रिमाइंडर 2। आप लोग परसेंटेज साइन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो 2 रिमाइंडर 2 क्या होगा? 0 होगा, है हाँ, ना? रिस्पॉन्डिंग 0। एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 0। हेलो। राइट। सो आई थिंक तो ये क्वेश्चन प्रोबेबली क्लियर है, अगर नहीं है तो विल ओपन द माइक एट द एंड। हाँ, तब आप दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई इश्यूज नहीं है। और फिलहाल आप लोगों ने कल भी मुझे व्हाट्सएप नहीं करा, मैंने आपके डाउट्स के लिए काफी वेट करा, लेकिन आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी नहीं करा कोई डाउट। तो सो वी मूव अहेड, आई बिलीव। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज दोबारा बताइएगा मुझे। ठीक है। हाँ, देर इज सम इंडेंटेशन इश्यूज मे बी। आप एक बार उसको अगर रन करेंगे, इसी कोड को, मैं आपको कोड ऑलरेडी हमने आज भेज दिया है, और आप इसको एक बार रन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा फिर। ठीक है ना? शैल वी प्रोसीड सर? हेलो। तो आई थिंक एक जो डाउट है वो जो हमारी कंडीशन है इफ वाली उसके ऊपर आ रहा है हम्म। कि वो क्यों एग्जीक्यूट करेगी या क्यों एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अगर आप उसको एक बार एक्सप्लेन कर दें तो आई थिंक मेजोरिटी का डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आपके पास क्या लिखा है, इफ वैल्यू रिमाइंडर 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? अगर रिमाइंडर 2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, तब वो रेज करेगा नॉन डिजिबिलिटी एक्सेप्शन। जैसे मैंने 13 भेजा, मैंने 13 का रिमाइंडर 2 से निकाला, है ना? तो 1 आया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि ये कहां पर आ जाएगा? रेज नॉन डिजिबिलिटी एक्सेप्शन, मतलब ये रेज करेगा। आप उस एक्सेप्शन के नाम पे जाइए ना, नॉन डिजिबिलिटी एक्सेप्शन, यानी कि यहाँ पे डिविजिबल नहीं हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना? तभी एक्सेप्शन रेज करेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्योंकि हो सकता है इंडेंटेशन एरर है, मैं उसके लिए बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। फर्स्ट पॉइंट इज नॉन डिजिबिलिटी एक्सेप्शन। ये तभी ऑकर होगा, नाम से पता चल रहा है कि जो भी नंबर हम वहां पे दे रहे हैं लिस्ट में से, वो नंबर जब 2 से डिवाइड नहीं होगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंटरप्रेटर वर्क करता लाइन बाय लाइन। तो जब जैसे ही ये एक्सेप्शन रेज हुआ, आप देखिए नॉन डिजिबिलिटी एक्सेप्शन आपके पास दो ट्राई ब्लॉक में है, एक इस फंक्शन के अंदर, है ना? और एक आपने जहां से कॉलिंग की थी, वहां पे भी एक नॉन डिजिबिलिटी एक्सेप्शन लिखा हुआ है। बट इंटरप्रेटर किसके पास जाएगा? पहले जो उसके नियरेस्ट होगा, है ना? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जाएगा इस कोड को पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो कहां पे आ जाएगा? एक्सेप्ट नॉन डिजिबिलिटी एक्सेप्शन पे आ जाएगा, और उसको प्रिंट कर देगा नंबर एक्सेप्शन इनसाइड, यानी कि 13 के लिए प्रिंट करेगा ये नंबर एक्सेप्शन इनसाइड। सिमिलरली अगर 3 जाता है, तो वैल्यू रिमेन 3 रिमाइंडर 2 इज अगेन 1, है ना? फिर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन ये रेज करेगा एरर। अच्छा, जहां तक अगर डिविजिबल बाय 2 का वर्क करेगा, वो तब वर्क करेगा जब 2 और 22 जाएगा, क्योंकि आ, वहां पर वो डिविजिबल बाय 0 हो जाएगा। ठीक है। मैं इंडेंटेशन एरर मान सकता हूँ, हल्का फुल्का है शायद। तो आप एक बार इसको जब कोड को रन करोगे ना, तो परफेक्टली आंसर दे देगा आपको। थोड़ा सा आपको इंडेंटेशन ठीक करने पड़ेगा, और ये आंसर आपको दे देगा। ठीक है सर, अब एनी एनी डाउट प्लीज? सर एक डाउट है ऋषभ का, बट लेट्स टेक इट एट द एंड, वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, प्लीज सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Last 20 seconds to solve the question. Please reply. आई रिक्वेस्ट टू ट्राई टू गिव मोस्ट प्रोबेबल आउटकम। हो सकता है कि आउटकम इससे ऊपर ही वैरी हो, लेकिन इनमें से बेस्ट आउटकम जो होगा वो आपका रिजल्ट होता है। ठीक है ना? जब भी एमसीक्यूज आप सॉल्व करें,
आपके पास जब एमसीक्यूज होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम को ही आप जो वाला आउटकम आपके बहुत नियर हो, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम के, वही आपका रिजल्ट होता है। कोई हमें मिला बच्चों ने कुछ ऑप्शन बताया? So the response we've gotten so far is B and A, majority leaning towards B. टुवर्ड्स B for Bombay. बॉम्बे, ओके। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि इट इज वेरी नियर। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर हाउ इट बिहेव्स, हाउ इट गिव्स यू रिजल्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे क्या करा है, जिन्होंने, कितने बच्चों ने आंसर दिया था हमें सर? For nearly 40 students, I guess. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने एटलीस्ट ट्राई करा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन डेमो डेमो है हमारे पास, जहाँ पे हम एक वैल्यू 2, जिसको आपको देखा तो सिंगल कोर्स में दिया हुआ है, और एक 0, दो वैल्यूज गई। num1 के अंदर 2 गया एज अ, अगर आप देखें तो एज अ करेक्टर है, और 0 num2 में चला गया। ठीक है, अब उस इनसाइड दिस ट्राई इफ num1 इज डबल इक्वल्स टू 2, क्या num1 डबल इक्वल्स टू 2 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 आपने भेजा वो एज अ करेक्टर बिहेव कर रहा है। तो एक एक्सेप्शन ऑकर हुआ, दैट इज कॉल्ड नेम एरर, जिसमें उसने प्रिंट कर दिया इनवैलिड टाइप। कई केसेस में इनवैलिड टाइप पे ही आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम कॉलिंग कर रहे हैं, तो कॉलिंग में क्या होता है कि वापस भी रिटर्न बैक हो सकता है, तो उस केस पे डेमो मतलब प्रिंट डन प्रिंट हो जाएगा फिर वहां पे। तो इनवैलिड टाइप के बाद डन प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट टर्न से डिस्कस करते आ रहे हैं, यानी कि फ्रॉम यस्टरडे, फाइनली ब्लॉक तो हमेशा रन होता ही होता है। तो इसका ट्राई का फाइनली ब्लॉक रन हुआ, जहां पे लिखा है प्रोग्राम डन। इसलिए आपके 3 आउटकम जनरेट होते हैं, इनवैलिड टाइप, डन एंड प्रोग्राम डन। एक और केस हो सकता है, अगर खाली इनवैलिड टाइप और प्रोग्राम डन लिखा हो, तो इनवैलिड टाइप और प्रोग्राम डन भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, बट ये मोस्ट प्रोबेबल सही आंसर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है। हेलो, आई थिंक दिस इज क्लियर टू दैम। हेलो, हेलो प्रियांशा, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Students, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लिख दीजिए चार्ट में। Rohan, Supriya, Geeta are saying it's clear. ओके, Yes, it's थैंक यू। clear to them, and we can move forward to the next question. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन है, और आप लोग उसको शायद बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। You still have 20 seconds to go. So majority response अभी तक A आया है. ओके, We've gotten 10 or 11 responses, and everyone is saying A is the answer. Others also reply, please. Some students are saying B होगा, and a couple are saying कि C होगा. ओके। जिसने ए किसी ने अगर लिया हो एज एन आउटपुट, उनसे पूछे क्यों ए होगा। So majority है जिन्होंने A बोला है. किसी एक का माइक ओपन करा के पूछें सर, ए क्यों होगा। नरेंद्र राय, आप अभी अवेलेबल हैं? अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं आंसर A क्यों होगा? How about Rohan Chaudhary? यस सर। आंसर A क्यों बताया बेटा आपने? सर क्योंकि फाइनली जो स्टेटमेंट होता है प्रोग्राम के एंड में सभी ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद सिंगल टाइम रन होता है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्राई कितने बार रन होगा जो अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है?
सर आई थिंक रोहन अब अवेलेबल नहीं है, आप Okay. की तरफ जा सकते हैं। सर आई एम हियर। ओके रोहन, जो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने -2 0 -1 दिया है, एक फॉर लूप लिखा हुआ है, ये ट्राई ब्लॉक कितनी बार रन करेगा? सर आई थिंक एक ही बार करेगा, वैल्यू एरर आ जाएगा तो फॉर से एग्जिट हो जाएगा। ओके, एनीवन एल्स? जिन्होंने 3 दिया था वो बताएंगे। कार्तिक सिंह, आप अवेलेबल हैं तो अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं सी क्यों आंसर आपने दिया था। सर लिस्ट के तीनों एलिमेंट के लिए रन होगा ना? सो करेक्ट आंसर इज सी, लिस्ट के तीनों एलिमेंट्स के लिए रन होगा। हर एलिमेंट को चेक किया जाएगा, हर एलिमेंट के लिए ट्राई ब्लॉक वर्क कर रहा है, हर एलिमेंट के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक वर्क कर रहा है, तो ये पूरा पेयर जो है फाइनली हर एलिमेंट के लिए रन करेगा। तो -2 के लिए भी रन करेगा, 0 के लिए भी रन करेगा और -1 के लिए भी रन करेगा। सो करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट इज assert. So what assert is something that is a special keyword in exception handling. The assert keyword lets you test if the condition in your code returns true. आपके जो कोड में कंडीशन अगर रिटर्न कोड अगर मतलब जो आपने कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू है, तब ये क्या रन कर देगा, जो भी assert एरर है उसको रन करेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू क्रिकेट, ठीक है, तो x इज अ वेरिएबल दैट कंटेन स्ट्रिंग क्रिकेट। assert x पे वैल्यू क्या है, हमने चेंज कर दिया, क्या लिख दिया, हम इक्वेट कर रहे हैं x डबल इक्वल्स टू विकेट, यानी कि क्रिकेट इज डबल इक्वल्स टू विकेट। तो अब ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, ये दोनों कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो क्या हुआ, एक एसर्शन एरर ऑकर हुआ और क्या प्रिंट कर दिया इसने, x शुड बी क्रिकेट। तो assert इज लाइक इज यूज फॉर डिबगिंग। डिबगिंग मींस अगर आपको एक प्रोग्राम को डिबग करना है, आपको रिजल्ट्स मैच करने हैं, तो जिस तरीके से हम इफ वर्क करता है आपका, इफ एल्स वर्क करता है, इन द सिमिलर मैनर आपका assert भी वर्क करता है। और वो एक टेस्ट की कंडीशन, जब हम डीबग कहते हैं, डीबग का मतलब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस कोड की टेस्टिंग के काम आता है। और इस एरर को बोलते हैं हम assertion एरर। चेक कैसे करेंगे, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ये कब वर्क करेगा, अगर कंडीशन आपकी x इज इक्वल्स टू क्रिकेट लिखा आपने, assert x डबल इक्वल्स टू विकेट, तो इसका मतलब है आप दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो, और क्रिकेट कभी भी विकेट के इक्वल नहीं है, मतलब दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हाँ, अगर वहां पे ये लिखा होता x इज इक्वल्स टू विकेट, वहां पे भी विकेट होता तो नो एरर इज जनरेटेड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, assert x इज इक्वल्स टू विकेट, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई ना हमारी, ये स्ट्रिंग जो क्रिकेट है वो विकेट के इक्वल नहीं है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया आपका, एक assertion एरर प्रिंट करा, और क्या रिजल्ट दे रहा है हमें, x शुड बी क्रिकेट। ये बात समझ आ रहा है आपका assertion एरर कैसे वर्क करेगा? गाइस अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में रिप्लाई कर दीजिए। सर हमारे पास पिछले 2 क्वेश्चंस के लिए एक डाउट था, अगर हम वो डील कर सकें तो। बताएं बताएं, कोई नहीं, बताएं आप, क्या डाउट था उनका? तो एक तो सिंपल था कि जो आपने लास्ट एक्सप्लेनेशन दिया वो रिपीट करना था, कि लूप क्यों चलेगा 3 बार एंड वो ट्राई ब्लॉक हमारा 3 बार क्यों रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, देखिए वहां पे रीजंस ये था कि जैसे आपका जब एक पर्टिकुलर, ये जो ब्लॉक जब हम बोलते हैं, तो उस ब्लॉक के अंदर हमारे पास कोड लिखा, सेट ऑफ लाइंस, तो जैसे हमने -2 भेजा तो एक पूरा एक कोड रन होगा उस पर, पूरा एग्जीक्यूशन होगा उसका। अब -2 के लिए तो कंप्लीट रन हो रहा है ना वो, फिर 0 के लिए कंप्लीट रन हो रहा है, फिर -1 के लिए कंप्लीट रन हो रहा है, तो ये 3 टाइम्स रन हुआ, तो 3 टाइम्स जब रन हुआ तो 3 टाइम्स हमारा फाइनली ब्लॉक कॉल हुआ, जब 3 टाइम्स फाइनली कॉल हुआ तो उसने उसको 3 प्रिंट कर दिया हमने वहां पे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? आंसर जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें टाइप एरर क्यों नहीं आएगा, वो टाइप एरर भी तो देना चाहिए। बिग क्वेश्चन सेकंड लास्ट उत्कर्ष का कमेंट था, अगर उत्कर्ष है तो आप अपना माइक ओपन करके उत्कर्ष, यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने जो एरर लिखे हैं उस कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं या आ जाएंगे, अगर आप देखेंगे वहां पे, तो वहां पे हम लोगों ने एक नेम एरर दिया है वहां पे,
और एक जीरो डिवीजन एरर दिया है। जिस टाइप का आप बता रहे हैं वो हमने वहां पे नहीं दिया हुआ एक्सेप्ट के अंदर। और मैंने कल भी बताया था हायरार्की के हिसाब से अगर कोई एक्सेप्ट हैंडल कर सकता है उस तरीके के एरर को तो वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप एक्सेप्ट में जो आप बता रहे हैं वो लिखेंगे तो फिर वो उसको उसके थ्रू वो हैंडल होगा। तो वहां पे हमने एक्सेप्ट में शायद वो नहीं लिखा जो आप बता रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? हेलो। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट दोनों का, आयुष का एंड उत्कर्ष का। सर वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन फॉर एफर्ट और द नेक्स्ट टॉपिक एज इट बी। ओके ओके, थैंक यू। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एसर स्टेटमेंट दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, आप बताएं व्हाट इज द केस। फिर 20 seconds ago, please everyone respond. So the response we have gotten so far is C and D. No output. Either no output or X is too small. Majority leaning towards the answer C. Okay. कोड क्या कह रहा है? x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4। एसर्ट में क्या लिखा है आपने? y इज ग्रेटर देन x। ये ट्रू है फॉल्स है? दिस इज ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स? ट्रू या फॉल्स लिख दीजिए चार्ट में, या फिर टी या एफ लिख दीजिए एज इट बी। तो ट्रू कह रहे हैं साहब। जब ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए ना। हमने इफ कंडीशन से कंपेयर किया था ना इसको। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। हमने इफ कंडीशन से आपको याद हो तो मैंने लास्ट स्टेटमेंट ये दिया था कि इसको हम इफ के मतलब है तो एसर्ट इज यूज फॉर द डिबगिंग कोड, बट अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आप इफ के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं उसको। जैसे इफ कंडीशन वर्क करती है, अगर ट्रू होगा तो कोड रन करेगा, अदरवाइज नहीं रन करेगा। अगर ये ट्रू है तो कोड रन करेगा। तो इसके अंदर क्या लिखा है हमने, आप बताएं? x is too small. Are you getting this? स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो प्लीज स्टार्ट में लिख दीजिए। सर एक डाउट शायद आ सकता है दैट हमने यहाँ पे प्रिंट तो लिखा नहीं, तो प्रिंट कैसे हो रहा है? हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा नहीं, प्रिंट क्यों हो रहा है? जी अच्छा, अब आप मुझे बताना, जब मैंने आपको एक कोड एक्सप्लेन किया था मैंने यहाँ पे कहीं प्रिंट लिखा है? नहीं लिखा ना। एसर्ट की प्रॉपर्टी है, वो प्रिंट कर सकता है, इसलिए सॉरी। एसर्ट की प्रॉपर्टी है ना बेटा। एसर्ट की प्रॉपर्टी में अगर आप नहीं भी लिखेंगे तभी वो उसे प्रिंट कर देगा अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो। वहां पे एसर्शन एरर ऑकर हुआ था और उसने जो लास्ट में लिखा था वो एसर्शन एरर के रिस्पेक्ट में लिखा था कि आप यहाँ पे एसर्शन एरर है और आप ये प्रिंट कराना चाहते हैं। वहां पे पूरे कोड में ये बात लिखी थी। यहाँ पे हमारा कोड सही है, y इज ग्रेटर देन x, 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज ट्रू, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? x टू स्मॉल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट समझने के लिए, ये डिबगिंग का टूल है हमारे लिए। ठीक है, आई बिलीव समझ आ गया होगा। yes sir, I believe the same. We can move forward to the next question or the next topic. नेक्स्ट क्विज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव वो क्विज जो है वो उत्कर्ष का यहाँ पे कमेंट आया है हाँ जी। कि उत्कर्ष आप अपना माइक ओपन करेंगे क्या? आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताएं। सर पाइथन में डायरेक्ट रन करके देखा है तब भी सर एरर नहीं थ्रो हो रहा। सर वो कह रहे हैं कि अगर हमने स्मॉल लिया है y को तो ही एरर थ्रो हो रहा है, अदरवाइज कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रही। आपने किस इंटरप्रेटर पे रन करा बेटा? सर जुपिटर नोटबुक।
तो इसको मैं एक बार और रन करके देख लूंगा, जुपिटर पे भी रन करके देख लूंगा, स्पाइडर पे भी रन करके। मैं जनरली स्पाइडर प्रेफर करता हूँ, तो मैंने वहां पे रन करके देखा है इसको। तो मैंने कल भी इसलिए बोला था कि इट डिपेंड्स ऑन इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर, हम लोग ऑनलाइन यूज कर रहे नहीं कर रहे, या वो लाइब्रेरी उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही। तो मैं एक बार देख लूंगा उसको, ठीक है, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ना? यस सर। तो प्लीज मुझे एक बार रिमाइंड करा देना, मैं आपको रन करके इसका रिजल्ट भेज दूंगा, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इस तरीके का क्विज आपके इनफिटिक्यू में आ सकता है, इसको प्लीज ट्राई करें, सॉल्व करें। We have started getting responses, and they're saying that the answer is A. 5, 15, and 20 would be the answer. यू हैव स्टिल 10 सेकेंड्स, प्लीज रीथिंक, और जिन्होंने नहीं दिया आंसर प्लीज वो आंसर दें। यू डेफिनेटली गेट द आंसर इफ यू ड्राई रन इट, यू डेफिनेटली गेट द आंसर। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्स सर? So अब A and C हो गया आपके बोलने के बाद। ओके, तो इसको एक बार रन करके देखें। Yes, sir. We're still getting responses that they're saying that the answer is C. We can give them 10 more seconds to reply, and then we can go to the definition. Yes, you may give them 10 more seconds. I need a maximum responses. So out of the 30-35 responses we've gotten, it's almost an equal split between A and C, majority leaning towards C. And कुछ लोग जिन्होंने पहले A बोला था वो अपना आंसर चेंज कर रहे हैं C की तरफ अब। अच्छा, चलो रन करते हैं, ठीक है। मैं भी आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, पहले हम इसको ड्राई रन करेंगे, और फिर मैं भी आंसर देखूंगा और आप भी आंसर देखना, ठीक है? फिर पता चलेगा कि आंसर कौन सा है, A B C या D, ठीक है? फिर आप लोग भी अपना व्यूज दीजिएगा। देखिए इनसाइड द फर्स्ट जो लाइन जो आपको कोड का लिखा है उसमें ट्राई है, ट्राई के अंदर एक फंक्शन है प्रिंट, जो कि उस फंक्शन fun में 25 और 20 एज अ पैरामीटर भेज रहा है, यानी कि योर num1 कंटेन्स 25 and your num2 contains 20. Now in this line you compare 20 is greater than 25. This condition is false. It means we move to else section, num1 minus num2, yani 25 minus 20. The outcome is 5, that is return. So this outcome is returned to the line 2 where the function is called. So print 5. So 5, it will print 5. So still we are confused between A and C. Okay. Now we get this as a 5 as an outcome. Okay. अब ये बताएं आपको when there is no error, तो कौन सा स्टेटमेंट रन करता है? एक्सेप्ट तो रन नहीं करता है, कौन सा स्टेटमेंट रन करता है? हमने कल भी डिस्कस किया था, when there is no error, एक्सेप्ट तो रन नहीं करेगा, उसका क्या रन करेगा? एल्स। आप देखिए ना इस ट्राई के अंदर, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ प्रिंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट है जो हमने ट्राई में डाला है। एक्सेप्ट रन नहीं करेगा, है ना? तो क्या रन करेगा? इस पर्टिकुलर ट्राई के रिस्पेक्ट में वाला एल्स प्रिंट करेगा। तो इसमें से क्या प्रिंट करा है इसने फिर? 15। और पहले से पढ़ते आ रहे हैं फाइनली तो रन होना ही होना है, तो क्या प्रिंट होगा फिर? 20। ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? इनसाइड फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन आपका रन करता है, वहां से एक फंक्शन कॉल होता है, उसके रिटर्न से हमें एक वैल्यू मिलती है जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज 5। तो कोई एरर तो जनरेट नहीं हुआ ना वहां पे, या तो रेज वैल्यू एरर आता, वो तो जनरेट नहीं हुआ है। अगर वैल्यू एरर नहीं आया है तो उसके एक्सेप्ट के एल्स में तो जाएगा ना। व्हेन देयर इज नो एरर ऑकर्ड, तो कहां जाते हैं हम? एल्स में जाते हैं। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, एल्स में क्या लिखा है? प्रिंट 15, तो हमने प्रिंट 15 कर दिया। और फाइनली तो हमेशा फाइनली रन होना ही है,
तो वहां पे क्या है 20, तो राइट आंसर इज 5, 15 एंड 20. आर यू गेटिंग दिस और स्टिल यू नीड सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन? So they're saying it's clear to them. Thank you. So if it is clear, then I believe the next question you can solve easily. Okay. Now I need majority of you. Please give the answer. क्योंकि ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट क्विज में हो चुका है, तो शायद आप लोग बहुत इजीली अब इसको पिक कर लेंगे. So there's a unified response with everyone saying the answer is B. Okay. अभी भी आपके लोग के 5 सेकेंड है. आप लोग चाहे तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो भी आंसर दें प्लीज. ओके, द करेक्ट आंसर इज बी, 10 एंड 20. क्या मैं इसे एक्सप्लेन करूं या आप लोग को क्लियर है? Anyone wants its explanation, so I explain it. So हाँ जी. कोई डाउट नहीं रेज हुआ. They're saying it's clear. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक आप जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया है ना कल से अभी तक, वहां पे हम लोगों ने जो एक्सेप्शंस लिए थे वो सारे सिस्टम, मतलब इनबिल्ट एक्सेप्शंस है, लाइक वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, दे ऑल आर बेसिकली योर बिल्ट इन एक्सेप्शन. नाउ वी मूव वन स्टेप अहेड. नाउ वी क्रिएट अवर ओन एक्सेप्शंस. ठीक है, ऐसे एक्सेप्शन जो हम खुद अपने लिए, यानी कि वो जो एक्सेप्शन की हायरार्की हमने देखी थी बिल्ट इन एक्सेप्शन की, अब उसको हम चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. बट उसके लिए एक ही कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है कि आपको जो भी कस्टम एक्सेप्शन अगर अपना लिखना है, तो वो जो क्लास है वो इनहेरिट होनी चाहिए एक्सेप्शन बेस क्लास से. अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है ऑलरेडी कि किस तरीके से हम इनहेरिट करते हैं, उसका सिंटेक्स आपको पता है. तो अगर आप देखें मेरे कोड के अंदर सामने, वहां पे मैंने एक कस्टम एरर नाम का क्लास बनाया है और इनहेरिट करा है उसको फ्रॉम एक्सेप्शन. सो वेनेवर यू राइट योर ओन एक्सेप्शन, आप खुद अपना एक कस्टम एक्सेप्शन का बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली उस एक्सेप्शन क्लास को, मतलब जैसे मेरे एक्सेप्शन क्लास का मतलब क्या है, यहाँ पे कस्टम एरर जो हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्लास बनाई है अपनी सेल्फ सेल्फ कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास को भी कैन से इनहेरिट करना पड़ेगा एक्सेप्शन से. दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? मैंने अब बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट लिखा है, दिस एक्सेप्शन क्लास हैज टू बी ड्राइव्ड आइदर और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास. ये बात आपको ध्यान रखनी है. और सिंटेक्स लिखने का टेक्निक यही रहेगा, आप पहले अपना क्लास, फिर क्लास लिखेंगे, क्लास के बाद आप जो भी अपने कस्टम एक्सेप्शन को नाम देना चाहते हैं वो लिखेंगे, ब्रैकेट में एक्सेप्शन लिखेंगे, कॉलन पास, और फिर उसको अपने कोड के अंदर यूज करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा रेज कस्टम एरर, और वो क्या प्रिंट कर रहा है, एन एरर ऑकर्ड. यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, कुछ डिस्कस करना है तो वो भी बताएं. कोई डाउट नहीं रेज हुआ. वर्किंग सिमिलर रहेगी जैसे आपने पहले किया हुआ है. वर्किंग में देर इज नो चेंज. खाली समझना आपको ये है कि आप अपनी एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, और उस क्लास को आप इनहेरिट करेंगे फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास, और नीचे पास लिख देंगे. ठीक है, सो इतनी बात समझ आ गई. और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जिस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क करती है, सेम थिंग्स यहाँ पे भी वर्क करेंगी. ठीक है, या इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हुए हैं वो एज इट इज यहाँ पे अप्लाई होंगे एक्सेप्शन के अंदर भी. सो दिस इज अनदर कोड.
मैंने ये बड़ा सिंपल सा कोड लिखा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मैंने एक क्लास बनाई है एरर नाम से, और वो क्लास इनहेरिट है फ्रॉम एक्सेप्शन। ठीक है, और नीचे पास लिख दिया। एक और क्लास मैंने बनाई वैल्यू टू स्मॉल एरर। ठीक है, और वो किससे इनहेरिटेड है, एरर से इनहेरिटेड है। फिर एक और बनाया क्लास वैल्यू टू लार्ज एरर, और ब्रैकेट में फिर एरर। तो कोई मुझे बता सकता है ये किस तरीके की इनहेरिटेंस है? अभी मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, किस तरीके की इनहेरिटेंस है ये? मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, हायरार्किकल, किस तरीके की ये इनहेरिटेंस है? प्लीज चैट में रिस्पॉन्स करिए। सर दे सेइंग hierarchical and multiple. ओके, गुड। नाउ कम टू द लाइन नंबर 12, जहां पे हम लोगों ने एक ट्राई ब्लॉक लिखा है ना? वाइल ट्रू के नीचे एक ट्राई ब्लॉक है। वहां पे आपके पास आप यूजर से एक नंबर एंटर करा रहे हैं, और उस नंबर को आप आई नम में एज एन इंटीजर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने नंबर को कंपेयर करा आई नम से, है ना, जो भी आपने नंबर इनपुट में दिया है। सपोज करें मैंने यहाँ पे जो एंटर नंबर लिया था, मैंने 12 लिया था, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 इज लेस देन नंबर, और नंबर में वैल्यू क्या ली हुई है, 10। तो 10 इज ग्रेटर देन 12। तो कंडीशन क्या है, ये ट्रू है फॉल्स है? और अगर ये कंडीशन आपकी क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 12, तो ये क्या हो जाएगा, एलसेफ पे चला जाएगा। वहां पे क्या है, रेज वैल्यू टू लार्ज एरर, यहां से ये वैल्यू टू लार्ज एरर को रेज कर रहा है ना? अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एक एक्सेप्ट होना चाहिए। तो देखिए एक्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है इसके लिए, वैल्यू टू लार्ज एरर, और क्या प्रिंट कर देगा ये, दिस वैल्यू इज टू लार्ज। आर यू गेटिंग दिस? कैसे रन हो रहा है स्टूडेंट्स? गाइस अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में रिस्पॉन्ड करिए। आदित्य, या सर हमें बस 3 4 रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि क्लियर है कि किस तरीके से चल रहा है, या मोर रिस्पॉन्सेज आर कमिंग इन नाउ। But the way the syntax is written, this is clear to you. If you आई see बिलीव सो सर। first 9 line of code, we just declare our exceptions, our custom exceptions, and from 10 onwards, from 10 to 23, we utilize that exceptions in our code. सर आई थिंक क्लियर है कि किस Okay. तरीके से काम कर रहा तो मैंने यहाँ पे इसका एक डायग्रामेटिक मैनर में भी आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया था, कि आपने 12 जैसे इनपुट दिया, 10 इज ग्रेटर देन 12, देन इट जंप्स टू वैल्यू टू लार्ज एरर, एंड देन it finds out with respect to this raise error, except that is value too large, and it will print you this value is too large. Now I think this quiz is clear to you. मैंने ये आपके सामने फ्लोट नहीं करा, रीजन क्या था? उसका मेन रीजन ये था कि अभी तक आपने कस्टम एक्सेप्शन पर उतना काम नहीं किया होगा। बीटेक में हम लोग उतना कस्टम एक्सेप्शन में काम नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को ये एज अ क्विज नहीं दिया था, बिकॉज आई नीड अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट उस पर जाऊंगा। सर एक क्वेश्चन आया है कि हमारे पास जो लाइन 23 है वो व्हाइल लूप के अंदर तो नहीं है, हम्म, तो वो एग्जीक्यूट कैसे हो रही है? मैंने वो एग्जीक्यूट बोला भी नहीं, आपको एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने आउटकम आपको क्या दिखाया है, दिस वैल्यू इज टू लार्ज। और मैंने अभी भी आपको बोला था कि अभी मोस्ट प्रोबेबल आउटकम्स में हम लोग वर्कआउट करते हैं ना बेटा। सॉरी आई रेड द क्वेश्चन रॉन्ग। दे आर सेइंग दैट कांग्रेचुलेशंस प्रिंट होना चाहिए ना, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ एनी एक्सेप्ट ब्लॉक and it is not part of the while block, so it's at the end of the statement, so it should be printed. हाँ, मैंने वो आपको बोला था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आउटकम हमारा यहाँ पे क्या था, मैंने तब आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब भी हम कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबल आउटकम्स को देखते हैं यहाँ पे, है ना? तो उस हिसाब से हमारा क्या प्रिंट होगा, दिस वैल्यू इज टू लार्ज। ठीक है, ऑप्शन में अगर मैं ये लिखता दिस वैल्यू इज टू लार्ज कॉमा कॉन्ग्रेट्स लिखता साथ में, तो यस, तब वो वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाता। ठीक है, Yes sir, they're saying that it's clear now. ओके, सॉल्व द नेक्स्ट वन। आई बिलीव जिनको ये बात क्लियर हो गया है, जिनको स्टेप समझ आ गए, वो नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बताए क्या आउटकम होगा।
So the response is it's D, Bombay. सो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। मेरा यहाँ पे कंसर्न टू लार्ज टू स्मॉल देखना नहीं था, मेरा यहाँ पे मेन कंसर्न था कि आपको ये बात समझ आ गया कि मैं कस्टम एक्सेप्शंस को कैसे लिखते हैं, उसके लिखने का स्टाइल आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आपके सामने कोड आएगा या कोड करने के लिए आएगा तो आपको कस्टम एक्सेप्शंस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, आप देखिए जब भी हम लोगों ने डिक्लेयर करा वहां पे पास जरूर लिखा है ना, क्लास के साथ क्लास नेम, जिस जिस मॉडल को इनहेरिट करा, जैसे एक्सेप्शन को हमने इनहेरिट करा यहाँ पे, उसके नीचे पास लिखा है, तो आपको ये सिंटेक्स का वे समझ आना चाहिए कि सिंटेक्स कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कस्टम एक्सेप्शन हायरार्की। तो जो टेक्निक हम लोगों ने इनबिल्ट एक्सेप्शन में पढ़ी थी, सेम टेक्निक यहाँ पे भी फॉलो होता है। ठीक है, एक मॉडल मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, ग्रैंड मदर डॉटर इन लॉ वाला एक मॉडल मैंने डिस्कस किया था, एक एनालॉजी मतलब आपसे डिस्कस किया था एक केस स्टडी लेके। तो सेम केस स्टडी आप चाहे तो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑकर्स बेस्ड ऑन एक्सेप्शन हायरार्की, और जैसे हम लोग इससे पहले अपना एक हायरार्की बनाया था जिसको आप लोगों ने बताया था कि है ना, इससे पहले एक हायरार्की हमने बनाया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक हायरार्की बना रहे हैं, डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सेप्शन क्लासेस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे इनपुट आउटपुट एरर और ओएस एरर है, आर बोथ द सब क्लासेस ऑफ एनवायरमेंटल एरर। अगर आप वहां पे देखेंगे उस हायरार्की को जो हमने कल स्लाइड आपको दिखाया था, एनवायरमेंटल एरर के नीचे इनपुट आउटपुट एरर ओएस एरर है। अगर दैट कैचेस, अगर कोई ऐसा इशू ऑकर होता है जो इनपुट आउटपुट एरर को करना चाहिए, ओएस एरर को करना चाहिए, और ये दोनों एरर हमने नहीं लिखे एक्सेप्ट के अंदर, एक्सेप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल एरर, तो एनवायरमेंटल एरर कैन कैच बोथ इनपुट आउटपुट एरर एंड ओएस एरर। ठीक है, सिमिलर मैनर में अगर मैंने यहाँ पे देखिए एक बनाया है क्लास एरर, अब मैंने ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है ना, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको बिल्ट इन एक्सेप्शन वाला पे दोबारा रिवाइज कराऊं, है ना, अगर गैप हो तो। फिलहाल हमारी क्लासेस में इतना गैप नहीं आया है, लेकिन मैंने गैप में आपको समझाने के लिए, अगर गैप होगा तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कंफर्ट जोन के लिए एक एग्जांपल ऐसा लिया था। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन कस्टम एक्सेप्शन। वी हैव अ क्लास एरर, that error class is inherited by class X, that class X is inherited by class Y. Now tell me which kind of inheritance it is. Which kind of inheritance it is? किस इनहेरिटेंस मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं? कोई रिप्लाई सर? So we've gotten a couple of responses and they're saying multi-level है. Okay, good. Now if it is multi-level then you are easily able to understand कि grandmother जो है वो एरर है ना, मदर कौन है, X है, और चाइल्ड कौन है, Y है यहाँ पे। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक में आते हैं, हमने लिखा है z इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, तो एक नंबर एंटर हुआ, जैसे मैंने अपने आउटपुट में आपको दिखा रखा है, यहाँ पे नंबर हमने 8 एंटर कराया, तो z में वैल्यू क्या है, 8 है। 8 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। ये कहां पे जाएगा, रेज x, अभी x को ढूंढेगा, है ना, और x को अगर ढूंढ रहा है, रेज x को ढूंढेगा, तो x पे क्या प्रिंट कर रहा है, नंबर इज लेस देन 10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको, किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो, कोई डिस्कस करना चाहता हो? सर कोई डाउट नहीं है, बट आकाश ने अपना हाथ उठाया था to ask a question. Akash, you can okay sir, he's asking कि आप प्लीज इस कंसेप्ट को रिपीट कर दीजिए। आकाश, आपको ये बात समझना है कि अगर हम किसी हायरार्की की बात करते हैं तो हायरार्की में जो ऊपर है, जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो मल्टी लेवल हायरार्की बनाई है, इसमें सबसे पहले एरर है, फिर एरर के अंदर x है, x के नीचे y है ना। अगर कोई एरर ऑकर होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरप्रेटर सर्च करता है उस एक्सेप्ट को जो उसके रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने अगर देखा कोड के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एंटर नंबर 8 कराया, है ना, इनपुट में 8 करवाया, तो z में वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब 8 जो है, अगर आप ध्यान दो तो 8 जो है वो लेस देन 10 होता है। अब ये कंडीशन हमारी क्या हो गई है यहाँ पे, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई है। अगर ट्रू होगी तो रेज x,
तो इंटरप्रेटर अब किसको सर्च करेगा? एक्स को सर्च करेगा, है ना? जब इंटरप्रेटर एक्स को सर्च कर रहा है तो पहले उसको क्या मिला होगा? अगर लाइन बाय लाइन देखे तो पहले वाई मिला होगा, तो इसको उसने नहीं नहीं ट्रीट किया। इसने किसको ट्रीट करा? एक्स को ट्रीट करा। तो क्या ट्रीट कर दिया? नंबर इज लेस देन 10। ठीक है आकाश, ये क्लियर है? आकाश प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो। हाँ सर क्लियर है सर। यहाँ पे हम 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक, एंड लेट्स टेक द अटेंडेंस एंड देन वी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, ले लीजिए ब्रेक। ओके सो स्टूडेंट्स राइट योर रोल नंबर इन द चैट। पर जो लोग चले जाते हैं ना रोल नंबर देने के बाद, प्लीज वो रुके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट आई एम टेकिंग योर 5 प्रीशियस मिनट, बट विद इन 5 प्रीशियस मिनट यू विल गेट अ गुड थिंग जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। तो वो मत करना कि अटेंडेंस दे के भाग गए। जहां आपने इतना सुना, मुझे खाली 4-5 मिनट और सुन लेना। सर शैल वी प्रोसीड? So they're still writing their attendance. Let's give them another minute and then we can. दे आर लिविंग और नॉट? So not leaving. Thank you, student. Please don't leave. Wait for a 4 minute only. You will get something and you appreciate it definitely. Just hold on for a 4 minutes. I need just your 4 or 5 minutes, not more than that. So we can continue. ओके जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं वो टॉपिक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? और हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आप उसी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए ये ग्रैंड मदर है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और ये डॉटर इन लॉ है, और ये इनके चाइल्ड है। नाउ थोड़ा सा मैं इसको केस स्टडी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और जिससे आप बहुत इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इसका दोबारा से। मैंने आपको ये बात बोला था, इफ सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन, ठीक है? जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर ये डॉटर इन लॉ दोनों शॉपिंग पे चली जाती हैं किसी दिन, तो इज द ग्रैंड मदर इज एबल टू हैंडल दिस चाइल्ड? और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला था यस। और डेफिनेटली, क्योंकि ग्रैंड मदर ने अगर इतना बड़ा घर संभाल रखा है तो छोटे छोटे बच्चे तो वो संभाल ही लेंगे, है ना? तो अब काफी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था, और यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सेप्शन आ जाए, जो एक्सेप्शन हमारे पास दो ऑप्शन हो, डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर, यानी कि अगर हमारे पास दो एक्सेप्शन इस तरीके से, जैसे जीरो डिवीजन एरर एंड अर्थमेटिक एरर है हमारे पास। सपोज ये अर्थमेटिक एरर है एंड दिस इज जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है?
और अगर मेरे पास कोड में जीरो डिवीजन एरर पहले लिखा है और अर्थमेटिक एरर बाद में लिखा है, तो डेफिनेटली जीरो डिवीजन एरर रन करेगा। अगर एक्सेप्ट में सब पहले जीरो डिवीजन एरर लिखा है और बाद में एक्सेप्ट में क्या लिखा है, अर्थमेटिक एरर लिखा है, तो जीरो डिवीजन एरर वर्क करेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक्सेप्ट में पहले अर्थमेटिक एरर लिखा है और फिर जीरो डिवीजन लिखा है और डिवाइडेड बाय जीरो हुआ है ट्राई के अंदर, तो इंटरप्रेटर पहले अगर सर्च करेगा और उसे ये कोड मिल गया तो वो इसी से ही रन कर देगा, वो यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं, वो स्पेशली जीरो डिवीजन एरर को नहीं सर्च करेगा। हायरार्की में जो पहले ऊपर आता है उसको जैसे ही उस इनबिल्ट एक्सेप्शन या हमने कस्टम एक्सेप्शन की जो हायरार्की बनाई है, जो उसको पहले मिल जाएगा वो उसको पहले उसको रन कर देगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोग को पॉइंट क्लियर है? Guys, are you clear in the chat if it's clear to you? इफ इट इज क्लियर, नेक्स्ट का आंसर आप बहुत जल्दी से दे दोगे, आप समझ जाओगे क्या आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास एक या दो रिक्वेस्ट चाहिए कि प्लीज रिपीट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं फिर दोबारा बताता हूँ। एक और केस स्टडी लेते हैं और सिंपल सी केस स्टडी लेते हैं। देखिए, आप और आपके फादर हैं, है ना, मतलब आपके घर में जो भी पेरेंट्स आपके हैं, आप और आपके फादर है सपोज करें, ठीक है, और एक जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई काम घर का करना है हमें। ठीक है, आप और आपके फादर हैं और आपको कोई घर का काम करना है। ठीक है, तो अगर वो काम आप भी कर सकते हैं, सपोज कहीं ड्राइव करके जाना है आपको, ठीक है, मंदिर जाना है ड्राइव करके आपको, है ना, या गुरुद्वारे या मस्जिद कहीं भी जाना है आपको ड्राइव करके, तो आपके फादर भी ड्राइव कर सकते हैं और आप भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मदर है, मदर जो की चाबी देंगी कार की, ठीक है, जो पहले आएगा उनको दे देंगे, है ना, जो पहले सामने आएगा। अगर आप पहले हो, मतलब यू आर अ गुड ड्राइवर, ठीक है, और आप पहले हो, तो पहले आपको चांस मिलेगा गाड़ी ड्राइव करने का अगर आप पहले हो, और फादर बाद में, बाद में मतलब हायरार्की में, तो यू आर अ गुड ड्राइवर, तो पहले आपको चाबी मिलेगी और फिर आपके फादर को। और अगर आप गुड ड्राइवर नहीं हो, आप चला लेते हो लेकिन अच्छे ड्राइवर नहीं हो, तो पहले किसको मिलेगी? फादर को की मिल जाएगी। तो हायरार्की वाइज जो ऊपर है, जैसे अर्थमेटिक एरर और जीरो डिवीजन एरर है हमारे पास, तो हायरार्की वाइज अर्थमेटिक एरर ऊपर होता है, जीरो डिवीजन नीचे होता है। ठीक है, अब स्पेशली जीरो डिवीजन ऑकर होता है, 1/0 आता है, तो जीरो डिवीजन एरर ऑकर होना चाहिए। लेकिन इंटरप्रेटर जब सर्च कर रहा है और उसे बाई चांस आपके एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर पहले क्या मिल गया? अर्थमेटिक मिल गया, तो वो अर्थमेटिक से ही काम करवा लेगा, वो जीरो डिवीजन के लिए दोबारा सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो वो पहले फाइंड करेगा जीरो डिवीजन को, ढूंढने शुरू करेगा, लेकिन अगर उसे पहले एनकाउंटर क्या हो गया? अर्थमेटिक एरर, तो वो अर्थमेटिक एरर को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आउट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हेलो सर, आई बिलीव क्लियर है, वी कैन जंप टू द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन तो नहीं, अगला भी कॉन्सेप्ट ही है, बट आप मुझे बता सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि नहीं आया बाय सीइंग दैट कोड। बताएं क्या आंसर आएगा। प्लीज रिस्पॉन्ड करें। अगर आपको इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट। और मैंने जानबूझ के ये दिया था, ठीक है ना, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। So we're getting answer as A, and we're around 30 students have responded so far. 35 now. गुड, ए इज आंसर, है ना। अब कई लोग कहेंगे यार ए कैसे आंसर हो गया, मैंने तो नंबर 8 डाला, नंबर इज लेस देन 10 होना चाहिए, सर ने तो गड़बड़ कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया, है ना। अब मैं इसको सही करके बताता हूँ आपको, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ उसी बात। मैंने यहाँ पे 8 एज एन इनपुट दिया, 8 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हुई? कंडीशन हो गई, है ना, 10 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन क्या हुई? ट्रू, ट्रू हो गई ना। तो रेज एक्स, अब अगर आप हायरार्की देखो, हायरार्की में एक्स ऊपर आता है ना वाई से, तो मैंने क्या बोला था कि जो हायरार्की में पहले आया, अब नंबर इज लेस देन 10 तक उसने सर्च ही नहीं करा, उसने हायरार्की देखी इंटरप्रेटर ने, सबसे पहले एरर आता है, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है, तो जैसे ही रेज एक्स कॉल हुआ तो ये कहां पे चला गया? एक्स पे चला गया, और एक्स में क्या प्रिंट कर दिया? नंबर इज मोर देन 10। इसने ये बात देखा ही नहीं, इवन
अगर आप इसको उल्टा भी इसे ये बात देखी नहीं, अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं कोड को, शायद मैंने इस कोड को ऐसे भी कर सकता हूँ, मतलब मैंने इसको अगर इसको ग्रेटर देन की जगह उल्टा भी कर दूं, तब भी हमारा रिजल्ट जो प्रिंट होगा ना, वो प्रिंट होगा नंबर इज मोर देन 10। आप एक बार रन करके जरूर देखिएगा। अगर मैं z के साइन को, जो मैंने 10 इज ग्रेटर देन z करा हुआ है, अभी तो आपको बहुत मतलब सीधा सीधा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है 8 इज ग्रेटर देन 10 रेज x, और सर ने बोल दिया x रन हो गया, नंबर इज, है ना, यहाँ पे प्रिंट ही तो हो रहा है नंबर मोर देन 10। नहीं, मेरा यहाँ बताने का रीजन क्या था कि अगर मैं z को अभी ग्रेटर देन 10 कर दूं, यहाँ पे आप चाहो तो इस कोड को रन कर सकते हो अभी, अगर z को ग्रेटर देन 10 कर दूं, स्टिल रेज ये y को करेगा, लेकिन जैसे ही y को रेज करेगा तो सबसे पहले इंटरप्रेटर एक्सेप्ट x को देखेगा, और x y के हायरार्की में ऊपर आता है, तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज मोर देन 10। स्टिल इट प्रिंट्स नंबर मोर देन 10। यू आर गेटिंग दिस? गाइस क्लियर लिख दीजिएगा चैट में इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। एक बार इसको ऐसे रन जरूर कीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, z इज ग्रेटर देन 10 लेके सेम कोड को, you will get the same answer, number is more than 10, क्योंकि हायरार्की वाइज x ऊपर है y नीचे है, जैसे ही इंटरप्रेटर x को एनकाउंटर करेगा वो प्रिंट कर देगा। यप सर क्लियर है, दिस थिंग इज क्लियर टू देम। ओके, अगर ये क्लियर है तो डेफिनेटली वहां पे क्वेश्चन हमारा होने वाला, मतलब जो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये आपका फेवरेट है, एंटर द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु वांट टू प्ले। नाउ चेक क्या होगा, look at the code and like run it एक बार pen and paper use करके and then respond what do you think the answers have. You gotten 2 responses so far and they say that the answer might be B or A. More answers are coming now and majority is saying the answer is A while there is a sprinkle of B there as well. Sir? yes, the answer they're giving is A and about 10% are saying the answer might be B. आंसर इज ए। व्हाई इट इज ए, मैंने यहाँ पे एंटर द नंबर -3 डाला है ना, और यहाँ लिखा कि कंडीशन के अंदर इफ p इज 1 इज ग्रेटर देन p, कितना है यहाँ पे -3, 1 इज ग्रेटर देन -3, इट विल रेज x, व्हेन इट रेज x, x में क्या प्रिंट कर दिया, नंबर ऑफ प्लेयर मस्ट बी बिटवीन 1 and 2, ठीक है। आप बोलेंगे अगर मैं 1 डालता तो, है ना, 2 डालता तो मैंने वहां पे रेज y रेज z वहां पे आपके लिए लिख दिया एज अ सिंगल प्लेयर 2 प्लेयर गेम। आप लोग गेम खेलते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे इस तरीके से पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्लेयर्स वांट टू प्ले द गेम, तो वहां पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होती है, उसका मैंने थोड़ा सा एक रिव्यू दिया है इसके अंदर किस तरीके से हम वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव इट इज क्लियर टू यू। हेलो guys clear है तो again yes why some sign in the chat. Yes sir, the saying it's clear. So my topic is clear, or my WhatsApp number is shared by sir to you. I'll You share may, it. Give me a second. and you people may contact me. देखिए, it may be possible that somewhere the outcomes are not as we expect. अगर आपको ऐसा लगता है तो please send me that query. I will run it. I definitely reply you back. I will try my level best कि मैं आपको टॉपिक बता पाऊँ जो इन्फीडीक्यू में पूछा जाता है, और आप लोग अपने आउटकम्स बहुत अच्छे दें। So all the best students. So sir, may we open the mic and we discuss the doubts? Yes sir, let's do that. I'll just close the recording. Give me 1 second.